Hello, children. This is a platform of the Academy, and today we are going to read a chapter of Class 10 ICSE, the prose chapter that is With the Photographer, written by Stephen Leacock. So, before we begin with the chapter, I want to just give you a little bit introduction to the chapter. This is about a man who wants to give a photograph of him to his friend so that when he dies, his friend could remember him. So, with this intention in his mind, he goes to a photographer and there he tells him to paint to make a to click a photograph of him in which he could look as in the same manner as he is. So he goes to the photographer, and then what happens to him, what all experiences he had, now we are going to study in this chapter. Okay, so let's begin. I want my photograph taken, I said. So I here is the writer itself. He's talking about himself, the narrator. So he has gone to the photographer to take his photograph. So he says, I want my photograph taken. The photographer looked at me without enthusiasm. Enthusiasm means energy. So he told the photographer that I am here, मैं यहाँ आया हूँ अपनी फोटोग्राफ लेने के लिए. तो उसकी बात को सुनकर फोटोग्राफर ने कोई एनर्जी नहीं दिखाई, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया. ठीक है, enthusiasm means excitement. So he looked at me without enthusiasm. He was a drooping man in a grey suit with the dim eye of a natural scientist. Drooping man means very dull. सो जो फोटोग्राफर था वो बहुत ही डल टाइप का इंसान था, ज्यादा कोई इसके चेहरे पे एक्साइटमेंट या खुशी नहीं रहती थी. सो ही वाज वेयरिंग अ ग्रे सूट, ग्रे कलर सूट विद अ डिम आई ऑफ अ नेचुरल साइंटिस्ट. हिज आईज वर वेरी डिम, बहुत ही छोटी छोटी आईज थी और आंखों में कोई शाइन नहीं था, कोई एक्साइटमेंट नहीं था. एंड ही वाज लुकिंग लाइक अ साइंटिस्ट. जैसे साइंटिस्ट होते हैं बहुत ही सीरियस टाइप के, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता उनके चेहरे पे, कुछ वैसा. बट देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब हिम. Everybody knows what a photographer is like. फिर यहाँ पे राइटर कहते हैं that there is no need of describing him, कोई मतलब नहीं इसे डिस्क्राइब करने का, because we all know that how a photographer looks. Now this is the 21st century and we are living in 2025, and now in this generation, in this time, we don't go to photographers. Why? Because we all have mobiles. We can click photographs whenever we want. All the people who use the use the mobile, every time they have the access to camera, so they can click their photographs as it is. But this is the story of 19th century, and in that time cameras were very rare. So whenever anybody wanted a photograph, जब भी किसी को अपनी फोटो चाहिए होती थी तो वो लोग स्टूडियो जाते थे और वहां पे फोटोग्राफर्स होते थे और उनसे अपनी फोटो खिंचवाते थे. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ दैट टाइम, इसीलिए नरेटर गए हैं वहां पे अपनी फोटो खिंचवाने. तो सबको पता होता है कि कैसा फोटोग्राफर दिखता है उस जमाने में, क्योंकि हर कोई फोटो खिंचाने वहीं जाता है. अब के लोग शायद ना जानते हो कि फोटोग्राफर कैसा दिखता है, बिकॉज नाउ वी डोंट गो टू एनी स्टूडियोज. वी ऑल हैव कैमराज, वी ऑल हैव मोबाइल फोन्स. So the time has changed. Sit there, he said, and wait. So the photographer replied. Photographer ने कहा कि वहां बैठिए, ठीक है, और थोड़ा इंतजार करिए. I waited an hour. I read the Ladies' Companion for 1912, the Girls' Magazine for 1902, and the Infant General for 1888. Now, from the years, you can come to know that this is a very ओल्ड स्टोरी ऑफ द 20th सेंचुरी. वहां पर फिर रीडर नरेटर बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं, 1 घंटे तक, और टाइम पास के लिए वहां पे कुछ मैगजीन्स रखी हुई थी, जैसे कि लेडीज कंपेनियन ऑफ 1912, गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902 एंड द इन्फेंट्स जनरल फॉर 1888. सो वो सारी मैगजीन्स वहां पर एक एक करके पढ़ने लगते हैं. I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine. So कुछ टाइम बिताने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि शायद उन्होंने यहाँ पर आगे गलती कर दी इसको फोटोग्राफर को डिस्टर्ब करके, बिकॉज ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था वो, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे. तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैंने साइंटिस्ट को क्या कर दिया, इसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर दिया यहाँ आकर. ठीक है. आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर. कुछ टाइम के बाद एक अंदर का दरवाजा खुलता है और वहां से फोटोग्राफर आता है.
come in, he said severely. Severely means seriously. तो बहुत ही सीरियस टोन में, जैसे कि पहले ही बताया गया है, he has no happiness or joy in his voice, तो सीरियसली बहुत कहता है come in, अंदर आइए. I went into the studio. Sit down, said the photographer. तो जब वो अंदर गए तो उसने कहा कि प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए. I sat down in a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted skylight. Now, the photographers maintain a proper arrangement of lighting in their studios. तो वहां पर जब वो एंटर करते हैं नरेटर, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सनलाइट के नीचे आ गए हों, क्योंकि वहां पे लाइटिंग बहुत अच्छी है. ठीक है, अगेन आई एम रीडिंग. आई सैट ऑन अ बीम ऑफ सनलाइट. तो उन्हें ऐसा लगा कि वो धूप में बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी वहां पर लाइटिंग थी स्टूडियो के अंदर, सो दैट एवरीबडी गेट्स अ परफेक्ट फोटोग्राफ. फिल्टर्ड थ्रू अ शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन हंग अगेंस्ट अ फ्रॉस्टेड स्काईलाइट. तो किनारे ढेर सारी कॉटन लगी हुई थी और वहां से लाइट निकल रही थी, और उस कॉटन से होकर वो लाइट डिस्पर्स हो रही थी, स्प्रेड हो रही थी, एंड इट वाज क्रिएटिंग व्यू ऑफ सनलाइट. तो जो वहां से जो लाइट निकल रही थी कॉटन से पास होकर, वो ऐसा लग रहा था कि धूप निकली हुई है. बेसिकली वांटेड टू क्रिएट अ लुक वेयर इट इज लुकिंग एज इफ समबडी इज गेटिंग अ फोटोग्राफ इन द डे लाइट. देखने में ऐसा लगना चाहिए कि कोई डे लाइट में बैठकर फोटो खिंचा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बिकॉज इन द डे लाइट व्हेन वी क्लिक द फोटोग्राफ्स देन दे आर मोर क्लियर एंड मोर हाई रेजोल्यूशन बिकॉज ऑफ द लाइट. तो जितनी ज्यादा लाइट पड़ती है उतनी हमारी फोटोग्राफ्स अच्छी आती हैं. Okay, the photographer rolled a machine into the middle of the room and crawled into it from behind. Now we are talking about more than 100 years ago. At that time the cameras were not the way they are now. इतने small, इतने कोजी कैमरास नहीं होते थे जैसे हम लोग अपने हाथों में लेके चलते हैं, मोबाइल है तो पॉकेट में रख लेते हैं. इतने प्रिसाइज और शॉर्ट स्मॉल कैमरास नहीं आते थे. ठीक है, दे वर बिगर, सो इट वाज ऑलमोस्ट लुक्ड लाइक अ मशीन. तो कैमरा जो मशीन की तरह दिखाई पड़ते थे. तो नाउ द फोटोग्राफर इज द नरेटर इज सिटिंग इन द रूम इन द स्टूडियो एंड द फोटोग्राफर रोल्स अ मशीन एंड ब्रिंग्स इट टू द सेंटर. एक मशीन वो रोल करते हुए लाता है फोटोग्राफर और कमरे के बीचों बीच आ जाता है, इन द मिडल ऑफ द रूम एंड क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड. और उसके पीछे उसे वो क्रॉल यानी कि उस कैमरे के अंदर देखने के लिए उसके अंदर अपना फेस डालता है फोटोग्राफर. He was only in it a second. तो एक टाइम के लिए वो कैमरे की लेंस से नरेटर को देखता है. Just time enough for one look at me. तो उसने बस एक नजर डाली इनके चेहरे पर, नरेटर के. And then he was out again, tearing at the cotton sheet and the window panes with a hooked stick, apparently frantic for light and air. उसके बाद फोटोग्राफर वहां से बाहर आ जाता है, उस मशीन से बेसिकली अपने सिर्फ फेस को बाहर निकालता है, एक बार इन्हें देखता है नरेटर को, एंड देन ही वाज टेयरिंग एट द कॉटन शीट एंड द विंडो पेन्स. तो वहां पर जो कॉटन की शीट्स लगी हुई हैं और जो विंडो पेन्स लगे हुए हैं वो सब कुछ एडजस्ट करने लगता है सो दैट ब्राइट लाइट कैन कम ऑन द नरेटर्स फेस. तो लाइट्स वगैरह पे एडजस्ट करने के लिए वो वहां पे इधर थोड़ा चीजें अरेंज करने लगता है. द विंडो पेन्स विद अ हुक्ड स्टिक, उसके हाथ में एक स्टिक है जिससे वो सारे अरेंजमेंट्स कर रहा है. अपैरेंटली फ्रैंटिक फॉर लाइट एंड एयर. फ्रैंटिक मतलब डिजायरिंग फॉर, उसको चाहिए थी क्या, लाइट एंड एयर. वो बेसिकली फोटोग्राफर है तो उसे एक परफेक्ट फोटो चाहिए, तो वो लाइट्स के लिए परेशान है कि बिल्कुल परफेक्ट लाइट जो है वो फोटो नरेटर के चेहरे पर आनी चाहिए. तो वो एडजस्टमेंट्स कर रहा है अपनी लाइट में, विंडो पेन्स खोल रहा है ताकि प्रॉपर लाइट जो है वो पड़ सके. Then he crawled back into the machine again. So again he went into the machine. Went to the machine क्या मतलब lenses के पीछे गया और वहां से वो देखने लगा. And drew a little black cotton over himself. अच्छा, in order to take the photographs in those type of cameras, वैसे कैमरा से फोटो लेने के लिए आपको कैमरा के लेंसेज के पीछे जाना होता था और एक ब्लैक कलर का क्लॉथ होता था, उसको फोटोग्राफर ओढ़ लेता था और फिर उसके अंदर से वो फोटोज खींचता था. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन एंड ड्रू अ लिटिल ब्लैक कॉटन ओवर हिमसेल्फ. तो फिर से वो कैमरे के अंदर गया और उसने अपने ऊपर एक ब्लैक कलर का
क्लॉथ डाल लिया और वहीं से वो फिर से फोटो नरेटर को देखने लगा. This time he was very quiet in there. I knew that he was praying and I kept still. Now inside that cloth, when he was looking from the camera, he was very quiet. बहुत ही शांति से वो नरेटर को देख रहा है, ठीक है, कुछ बोल नहीं रहा है, कैमरे में वो लेंसेज से देख रहा है. And I knew that he was praying and I kept still. तो यहाँ पे नरेटर एक जोक मारते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर से वो प्रे कर रहा था, ठीक है. एंड आई केप्ट स्टिल मतलब अनमूविंग. और ये भी बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद फोटो खींचने वाली है और ऐसे डिस्टर्ब हो सकती है फोटोज. तो दैट्स व्हाई ही इज सिटिंग वेरी स्टिल. बहुत ही सीधे से वो बिना मूव किए हुए बैठे हैं. When the photographer came out at last, he looked very grave and shook his head. Grave means serious. अब वो फोटोग्राफर क्लॉथ हटाता है और बाहर निकल आता है. He looked very grave और अब उसका चेहरा बहुत ही सीरियस हो गया है. And shook his head और अपना सिर जो है हल्का सा हिलाता है फोटो नरेटर को देखकर. What he says? The face is quite wrong, he said. कहता है कि जो फेस है आपका वो थोड़ा सा खराब है, ठीक है, सही नहीं है, आपके फेस में कुछ प्रॉब्लम है. Who says? The photographer. I know, I answered quietly. I have always known it. अब इस बात पे नरेटर जो है वो शॉक या सरप्राइज नहीं होता कि कैसे मेरे फेस को ये ऐसा बोल रहा है कि आपके फेस में कुछ खराबी है. अगर हम किसी को अपने लाइफ में बाहर मिले और उसको कहते हैं कि आपका फेस खराब है, तो शायद वो लड़ाई झगड़ा करने लगे, बुला भला बोलने लगे कि आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मेरा फेस खराब है. तो वी कांट से लाइक दिस. बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. नरेटर को जैसे ही फोटोग्राफर ने बोला कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर फेस, आपके फेस में कुछ खराबी है, तो नरेटर ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया. शायद वो भी थोड़ा सा अपने फेस को लेकर कॉन्शियस रहे होंगे लाइफ में. तो उन्होंने कहा यस आई नो, मुझे मालूम है. आई हैव ऑलवेज नोन इट, मुझे हमेशा से मालूम थी ये बात कि माय फेस इज नॉट परफेक्ट एंड देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय फेस. ही साइड मींस टू शो अ साइन ऑफ लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट. तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, थोड़ा सा दुखी हो गया फोटोग्राफर कि अरे ये तो ये उल्टा बोल रहे हैं कि हाँ मुझे मालूम है. ये तो बिल्कुल सरप्राइज ही नहीं हो रहे इस बात पर. वैसा और कोई इंसान तो सरप्राइज हो जाता है कि अरे क्या हो गया मेरे फेस में, क्या नहीं अच्छा लग रहा. लोग पूछने लगते हैं, बहुत ही कॉन्शियस होते हैं हम लोग अपने फेस को लेकर. बट यहाँ पर ऐसा नरेटर ने कुछ नहीं कहा. आई थिंक ही सेड द फेस वुड बी बेटर 3/4 full. Now there are different measurements of how to adjust the frame of the photograph. So यहाँ पर फोटोग्राफर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 3/4 full यानी कि पूरा फेस एकदम ना लेकर तो उसको 3/4 के रेजोल्यूशन में लूं, then I think that it would be better. तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा. I'm sure it would. अब यहाँ पे नरेटर ने तो खुद ही बोल दिया कि हमारा फेस परफेक्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो शायद ऐसा सही होगा. आई एम श्योर इट वुड, आई सेड एंथुसियास्टिकली. नाउ ही गॉट एक्साइटेड द नरेटर कि अच्छा ठीक है, चलो अभी से फाइनली समझ में आ गया कैसे फोटो लेनी है. तो ही सेड हाँ ठीक है, आप जो कहिए सब सही है. आई एम श्योर इट वुड, फॉर आई वाज ग्लैड टू फाइंड दैट द मैन हैड सच अ ह्यूमन साइड टू हिम. सो वुड योर्स इन फैक्ट, I continued. So glad means happy. तो खुश हो जाते हैं कि चलो चलो ठीक है, फोटोग्राफर जो है एक्सपीरियंस्ड है, उसे मालूम है कि कैसे फोटोज लेनी है, वो सही फोटोग्राफर के पास आए हैं. So would yours in fact, I continued. How many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless in. Okay, so the photographer says, so would yours. तो आपका भी फेस जो है वो ये कहते हैं ऐसे ही करेक्ट होगा, 3/4 मिलेंगे तो ही एकदम परफेक्ट फोटो आएगी. How many faces one sees that are apparently hard. तो इस बात पे नरेटर कहते हैं कि ऐसे बहुत से फेसेस हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं, ठीक है. How many faces one sees that are apparently hard. Hard मतलब रफ, narrow यानी पतले होते हैं, limited यानी कि छोटे से होते हैं,
But the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless. तो और उनका कहना है कि जैसे ही उन फोटोज को 3/4 में लिया जाता है, वैसे ही वो चेहरे कैसे दिखने लगते हैं, वाइड, बड़े, लार्ज और ऑलमोस्ट बाउंडलेस इन दैट इज डॉट 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 इन हियर डॉट 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 मींस इन द विजन ऑफ द पीपल हु सी इट। तो जो लोग देखते हैं बेसिकली उनको फिर वो चेहरा और ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगता है। ऐसा नरेटर का कहना है कि जो लोगों के चेहरे अच्छे नहीं होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, उनके चेहरे भी 3/4 में क्या हो जाते हैं, वाइड और बिग, और वो अच्छे लगने लगते हैं। बाउंडलेस, बाउंडलेस मतलब लिमिटलेस, ठीक है। बट द फोटोग्राफर हैड सीज्ड टू लिसन। सीज्ड मीन्स स्टॉप। बट उनकी इस बात को फोटोग्राफर ने नहीं सुना, ठीक है। वो अपने काम में लगा था कि अब आगे इनके चेहरे पर मुझे क्या करना है ताकि एक परफेक्ट फोटोग्राफ आ जाए। He came over and took my head in his hands and twisted it sideways. तो अब एक स्ट्रेंज सी चीज की फोटोग्राफर ने, वो नरेटर के बिल्कुल पास आया, उसने उनके चेहरे को अपने हाथ में ऐसे लिया, ठीक है, जैसे किसी का फेस पकड़ लेते हैं हम, वैसे उसने उनके चेहरे को अपने हाथ में पकड़ा एंड ही ट्विस्टेड इट साइडवेज, और उसने उनके चेहरे को ऐसे और ऐसे दोनों तरफ क्या किया, टर्न करके देखने लगा, ठीक है। एंड ट्विस्टेड साइडवेज, आई थॉट ही मेंट टू किस मी एंड आई क्लोज्ड माय आईज। तो यहाँ पे नरेटर फिर से जोक क्रैक करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये जो फोटोग्राफर है वो इनके फेस को पकड़कर शायद इनको किस करना चाहता है, तो इन्होंने अपने आंखें बंद कर ली। Basically, he was also a little bit frightened that what this photographer is doing, why he has come so close to me and he's holding my face. तो यहाँ वो जोक मारते हुए कहते हैं कि उनके ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें किस करने आया है। But I was wrong. तो नरेटर कहना है कि लेकिन उनकी ये प्रेडिक्शन जो थी वो रॉन्ग थी, वो उन्हें किस करने नहीं आया था। He twisted my face as far as it would go and then stood looking at it. तो जितना वो फेस घुमा सकता था उसने उतना उनका फेस घुमाया और दूर से उनके फेस को ऐसे देख रहा है, एग्जामिन कर रहा है कि इनके फेस में क्या खराबी है, क्या किया जा सकता है इनके फेस को बेटर बनाने के लिए। And stood looking, और खड़े होकर उनका फेस देख रहा है। He sighed again. तो again he showed a remark of grief. फिर से उसने ऐसा ग्रीफ का साइन दिखाया कि ओ कैसा चेहरा मिल गया मुझे आज फोटो खींचने के लिए। तो बेसिकली द फोटोग्राफर वांटेड अ परफेक्ट फोटोग्राफ। हर कोई अपने प्रोफेशन में परफेक्ट होना चाहता है, तो सेम गोज विद द फोटोग्राफर आल्सो। वो भी चाहता था कि उसकी जो फोटोग्राफ खींचे वो बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए, फिर चाहे वो पर्सन दिखने में परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन फोटोग्राफ परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आई डोंट लाइक द हेड, ही सेड। तो पहले उसने नरेटर से क्या कहा कि आई डोंट लाइक द फेस, कि मुझे तुम्हारा फेस अच्छा नहीं लगा। अब वो और जब पास से क्लोजली एग्जामिन कर रहा है तो अब क्या कहता है, आई डोंट लाइक द हेड, मुझे आपका सिर नहीं पसंद आया, ही सेड। देन ही वेंट बैक टू द मशीन एंड टुक अनदर लुक। फिर से वो गया कैमरे के पीछे, फिर से उसने क्लॉथ पहन लिया और वहां से फिर देख रहा है, ठीक है। एंड टुक अनदर लुक, ओपन द माउथ अ लिटिल, ही सेड। अब वो क्या कहता है नरेटर से, ओपन द माउथ, थोड़ा अपना माउथ खोलिए। आई स्टार्टेड टू डू सो, वैसा नरेटर ने किया भी। क्लोज इट, ही एडेड क्विकली, तो उसने कहा बंद कर लीजिए। देन ही लुक्ड अगेन, फिर उसने देखा कैमरे से। द ईयर्स आर बैड, नाउ ही मेड द थर्ड रिमार्क। First of all, he said your face is bad, I don't like the face. Second, he says I don't like your head. Now he's making third remark and saying the ears are bad, कि आपके तो कान खराब हैं। He said, कान खराब मतलब कि कान का शेप। He said, droop them a little more. Droop का मतलब होता है बेसिकली थोड़ा उनको नीचे करना, ठीक है। तो put them a little lower, थोड़ा अपने कानों को नीचे करिए। Thank you. Now the eyes. Roll them in under the lids. अब कहता है आंख की बात, ये तो कान है, उन्होंने कहा तो नीचे करो, तो कान का फिर उसको ठीक लगने लगे, थोड़ा फेस नीचे करा लिया। तो कह रहा है अब आंखों की बारी। अब आंखों में क्या करना है, रोल देम इन अंडर द लिड्स,
तो कह रहा है आंख को थोड़ा सा रोल करिए, यानी कि लिड्स को थोड़ा और बंद करिए. पुट द हैंड्स ऑन द नीज प्लीज एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड. फिर उनको ये डायरेक्शंस दे रहा है कि अपने हाथों को आप नीज पे रखिए और अपने फेस को थोड़ा सा अपवर्ड, थोड़ा सा चिन जो है वो ऊपर करिए. यस, दैट्स बेटर. सो दिस यू मस्ट ऑल हैव एक्सपीरियंस. सबने एक्सपीरियंस किया होगा जब हम फोटोज खिंचवाते हैं तो द मैन हु इज बिहाइंड द लेंस, द पर्सन हु इज बिहाइंड द लेंस, ही ऑलवेज गिव्स अस डायरेक्शन कि थोड़ा फेस इधर करो, थोड़ा सा स्माइल लाओ, होता है ना, बाल ठीक करो, अपना चेहरा थोड़ा साइड करो. सो इट इज द सेम थिंग वाज हैपनिंग. तो वो थोड़ा सा उनका फेस ऊपर करा रहा है, थोड़ी आईज चेक कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शंस दे रहा है. नाउ इट सेज यस दैट्स बेटर. उसने कहा हाँ ठीक है अब सही है. नाउ जस्ट एक्सपैंड द लंग्स. एक्सपैंड द लंग्स मतलब ब्रीद इन. उसने कहा थोड़ा सा ब्रीद इन करिए ताकि ये चेस्ट का एरिया थोड़ा बड़ा दिखाई दे. तो एक्सपैंड द लंग्स यानी ब्रीथ अ लिटिल बिट एयर. सो एंड हम्प द नेक. हम्प द नेक मतलब थोड़ा सा नेक को ऐसे आगे करिए, थोड़ा सा यहाँ का हम जो है वो निकालिए. दैट्स इट. एंड जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द वेस्ट. हा, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ब्रिंग इट स्मॉलर, इसको छोटा करो, यानी वेस्ट का जो एरिया है उसको थोड़ा अंदर करिए, यानी पेट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है. हा, एंड ट्विस्ट द हिप अप टुवर्ड द एल्बो. और एल्बो और अपने जो हिप्स हैं उनको थोड़ा सा ट्विस्ट करिए, थोड़ा साइड करिए और एल्बो के कांटेक्ट में लाइए. नाउ I still don't quite like the face. It's just a trifle too full. But इतना सब कुछ कराने के बाद भी अब वो क्या कहता है नरेटर से, आई जस्ट डोंट लाइक द फेस. मुझे अभी भी फेस अच्छा नहीं लगा आपका. इतना सब कुछ कराया उसने, कान ठीक कराए, आंख ठीक कराई, हाथों को नीज पे रखवाया और उसके बाद चिन को थोड़ा ऊपर करवाया और थोड़ा हिप्स को अंदर अंदर किया, चेस्ट आउटवर्ड करवाया. एंड इवन आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स ही सेज द सेम थिंग दैट आई डोंट लाइक द फेस. मुझे अभी भी फेस अच्छा नहीं लग रहा है. इट्स जस्ट अ ट्राइफल टू फुल. ट्राइफल मीन्स अ लिटिल बिट. कहता है कि थोड़ा सा ये फेस जो है आपका ज्यादा बड़ा दिख रहा है, टू फुल, बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है. बट लेकिन कहता है लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है. दैट इज डॉट डॉट डॉट, दैट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि बट यानी वो ये कहना चाह रहे कि अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो आपका नेचुरल फेस ही है. आई swung myself round on the stool. अब इतना सुनने के बाद इट वॉज अ बिग टेस्ट ऑफ पेशेंस फॉर द नरेटर. काफी उनका पेशेंस टेस्ट हुआ और फाइनली वो क्या होते हैं अपने स्टूल से खड़े हो जाते हैं. स्वंग माइसेल्फ से उछल कर वो अपने स्टूल से खड़े हो गए. स्टॉप, आई आस्क्ड विद इमोशन बट आई थिंक विद डिग्निटी. तो उन्होंने कहा रुको, ठीक है. ऐसा कहकर वो जो है उनके अंदर इमोशन भी था, वो चाहते थे कि वो अगर फोटो नहीं खिंचवाना चाह रहे थे, उनको कोई बात खराब लग गई. एंड इट वाज विद द डिग्निटी आल्सो. डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट. तो आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी उन्हें ये चीज खराब लगी. कितने एडजस्टमेंट्स कराने के बाद भी इज व्हाट ही इज सेइंग कि आई डोंट लाइक योर फेस. अभी भी मुझे आपका फेस अच्छा नहीं लगा. हालांकि उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ आई नो दैट माई फेस इज नॉट गुड. This face is my face. It is not yours. It is mine. तो एक बात बोलते हैं वो नरेटर कि जो फेस है ये जैसा भी है ये मेरा फेस है. It is mine, not yours. तुम्हारा नहीं है, ठीक है. I have lived with it for 40 years and I know its faults. उनका कहना है कि मैं इस चेहरे के साथ 40 इयर्स से जी रहा हूं, यानी कि नरेटर जो है वो 40 इयर्स के हैं. उनका कहना है 40 इयर्स से इस फेस के साथ जी रहा हूं, ठीक है, और मुझे मालूम है कि इसमें फॉल्ट है. उसमें हमने कोई मुझे नई बात नहीं बता दी आज की आपकी आंखें ऐसी हैं, आपके कान ऐसे हैं, आपका फेस फुल है. आई नो कि मेरे फेस पे फॉल्ट है. आई नो इट्स आउट ऑफ ड्रॉइंग. आउट ऑफ ड्रॉइंग मीन्स समथिंग दैट इज नॉट वेरी ब्यूटिफुल, जो बहुत अच्छा नहीं है, जो ड्रॉ नहीं किया गया है. आई नो इट वॉजंट मेड फॉर मी बट इट्स माई फेस, द ओनली वन आई हैव. तो वो थोड़ा सरकास्टिक में कहते हैं कि मुझे मालूम है भले ये चेहरा मेरे लिए बनाया गया हो या ना बनाया गया हो, बट जैसा भी है ये मेरा फेस है. एंड आई हैव ओनली वन. और भगवान की देने से मेरे पास सिर्फ एक ही फेस है, ठीक है. थोड़ा सरकाज़म में बोल रहे हैं. आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस बट आई वेंट ऑन. तो बोलते हुए थोड़ा सा गला भर आया, शायद वो इमोशन से भर गए
कि एक जो बचपन से शायद उनको भी ये चीज बहुत सुनने को मिली रही होगी कि तुम्हारा फेस अच्छा नहीं है, फेस अच्छा नहीं है। हो सकता है उन्होंने अपनी लाइफ में रिजेक्शन भी फेस की हो, तो उन्हें वो सारी बातें याद आने लगी एंड ही गॉट अ लिटिल इमोशनल, थोड़ा इमोशनल हो गए। तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका गला जो है वो भर आया है, ठीक है। ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस, तो ऐसा होता है ना जब हम बहुत इमोशनल से भर जाते हैं तो हमारे गले में थोड़ा आवाज भारी सी हो जाती है, थोड़ा रुकने लगती है। तो ही फेल्ट समवॉट लाइक दैट, सच एज इट इज, आई हैव लर्न टू लव इट। तो उन्होंने कहा जैसा भी है, इट इज लाइक दिस ओनली, आई हैव लर्न टू लव इट, मैंने सीखा है इतने सालों में कैसे अपने चेहरे को लव किया जाता है। एंड दिस इज माई माउथ नॉट योर्स, these ears are mine, and if your machine is too narrow here, I started to rise from the seat. So अब वो कहते हैं कि ये जो माउथ है ये मेरा है, ये जो फेस है ये मेरा है, ठीक है, जैसा भी है इट इज माइन, ये आज जो कान है ये मेरे हैं। एंड इफ योर मशीन इज टू नैरो, उन्होंने क्या कहा कि योर फेस इज टू फुल, एक कहा ना फोटोग्राफर ने कि आपका चेहरा बहुत फुल है। तो इसी बात पर नरेटर कहते हैं कि इफ योर मशीन इज टू नैरो, अगर तुम्हारी मशीन इतनी छोटी है, इतनी नैरो है कि वो मेरा फेस नहीं ले पा रही, मेरा फेस बड़ा लग रहा है उसको, देन आई स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम द सीट। तो वो कहते हैं, वो इतना कहकर वो अपने सीट से उठने लगे कि नहीं नहीं, अब मुझे फोटो नहीं खिंचानी है, नाउ लीव इट, हो गया, बहुत हो गया, बहुत इंसल्ट हो गई मेरे फेस की। स्निक, द फोटोग्राफर हैड पुल्ड अ स्ट्रिंग। सो जस्ट इन अ मोमेंट, एक अगले मोमेंट क्या हुआ, द फोटोग्राफर हैड पुल्ड अ स्ट्रिंग, फोटोग्राफर ने एक स्ट्रिंग पुल करी। द फोटोग्राफ टेकन, और उतने में फोटो खिंच गई, ठीक है। आई कुड सी द मशीन स्टिल स्टैगरिंग फ्रॉम द शॉक। तो ये जो मशीन्स होती थी, जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ा सा कैमरा होता था, उसमें स्ट्रिंग लगी होती थी, स्ट्रिंग को खींचते थे तो उससे फोटोज खिंच जाती थी। अभी तो हम लोग मोबाइल में बस बटन प्रेस करते हैं और स्क्रीन पर टैप करते हैं, वी गेट द फोटोग्राफ, बट देन वी हैड द फोटोग्राफर्स हैड टू पुल अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग खींचता है, वो फोटोग्राफ खिंच चुकी है। आई कुड सी द मशीन स्टिल स्टैगरिंग फ्रॉम द शॉक, स्टैगरिंग मतलब शेकिंग। तो जो ये स्ट्रिंग उसने खींची और जो फोटो खींची, उसमें हल्की सी मशीन क्या हुई कि कैमरा क्या हुआ, हल्का सा हिलने लगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूज साइज ऑफ द मशीन और द ह्यूज साइज ऑफ द कैमरा, ठीक है। सो फाइनली फोटो जो है वो खिंच जाती है। आई थिंक, सेड द फोटोग्राफर, pursing his lips in a pleased smile, that I caught the features just in a moment of animation. So फोटोग्राफर कहता है कि in a pleased, pursing मतलब moving his lips, तब थोड़ी सी स्माइल लाता है अपने चेहरे पर फोटोग्राफर और कहता है I caught the features just in a moment of animation. तो उसका कहना है कि जस्ट एक मोमेंट में मैंने आपके चेहरे के फीचर्स जो है वो कैप्चर कर लिए, ठीक है। So I said bitingly, features? You didn't think I could animate them, I suppose, but let me see the picture. So in a moment of animation, basically wants to say कि आपने जो यहाँ पे एनिमेट किया, यानी कि बेसिकली तो जो चेंज किया अपने फीचर्स को, उसकी वजह से उसका कहना है कि फाइनली आपकी फोटोग्राफ आ गई। तो ये बात थोड़ी नरेटर को अजीब सी लगी। उन्होंने कहा फीचर्स ई, उनको लगा फीचर्स और मेरा तो चेहरा ही बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये कैसे फीचर्स की तुम बात कर रहे हो कि तुमने कह रहे हो कि मैंने फीचर्स को कैप्चर कर लिया। यू डिडंट थिंक आई कुड एनिमेट देम, आई सपोज। तो नरेटर का यहाँ पे कहना है कि मैंने अपने फीचर्स को कोई चेंज नहीं किया, जैसे वो थे वैसे ही हैं, ठीक है। बट लेट मी सी द पिक्चर, उनका कहना चलो ठीक है, अच्छा मुझे फोटो दिखाओ, पिक्चर देखूं तो मैं बताऊं कि कैसी पिक्चर आई है। Oh, there's nothing to see yet, he said. I have to develop the negative first. So, जैसे मालूम होगा तुम लोगों को कि पहले के जमाने में हम लोग जब रील्स में फोटोज खींचती थी, फिर उनको डेवलप कराना पड़ता था, नेगेटिव्स डेवलप होते थे, एंड देन वी गॉट द फाइनल फोटोग्राफ ऑन अ पेपर। वो फोटोग्राफिक फिल्म होती थी, उस पर रील्स, उससे फोटोज खींचते थे और फिर उसको डेवलप कराना पड़ता था। तो he says कि nothing you can see here, अभी आप कुछ नहीं देख पाएंगे, फोटोग्राफर कहता है I have to develop the negative first, पहले मुझे नेगेटिव्स बनाने पड़ेंगे और फिर उससे
फोटोग्राफ्स बनेंगी। कम बैक ऑन सैटरडे एंड आई लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट। तो कहता है ठीक है जाइए, अभी आप सैटरडे को आइएगा एंड देन आई विल गिव अ प्रूफ, और तब मैं आपको आपके फोटोग्राफ का प्रूफ दूंगा। ओके